Hello everyone, welcome you all in the online classes. I am Vimlesh Kumar Singh. Today I am going to explain figures of speech, and in it we will try to understand एंटीथेसिस. एंटीथेसिस के बारे में हम जानेंगे कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेन ये क्या होता है, और अगर एग्ज़ाम में इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो हम लोग इसे किस तरीके से समझेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. तो अब चलिए, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एंटीथेसिस. एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है एकदम से विरोधी. एंटी का मतलब होता है एकदम से विरोधी, अलग, विपरीत. और थीसिस का मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कोई वक्तव्य हो या कोई कही गई बात हो जिसको हम कंट्रास्ट करते हैं. तो लेट्स सी द डेफिनेशन. इन हियर यू कैन से इन एंटीथेसिस वन वर्ड और आइडिया. एंटीथेसिस में क्या होता है? वन वर्ड और वन आइडिया इज सेट अगेंस्ट. सेट किया जाता है. अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के खिलाफ, के विपरीत. द अदर टू सिक्योर, किसके अगेंस्ट? दूसरे के खिलाफ, उसके अपोजिट में. टू सिक्योर एन इफेक्टिव कंट्रास्ट. इस तरीके से उसको सेट किया जाता है कि उसकी जो क्या होता है, एक सिक्योर एंड इफेक्टिव कंट्रास्ट, एक प्रभावकारी जो विपरीत अर्थ उसका जो है वहाँ पर सेट हो जाए बाय बैलेंसिंग, बैलेंस करके. इट मीन्स कि हम क्या करेंगे कि एंटीथेसिस में जो हम स्टडी करते हैं इस चीज़ को, तो फिर से देखते हैं. इन एंटीथेसिस वन वर्ड, in antithesis one word or idea is set against the other to secure an effective contrast by balancing. So dear friends, if you want to learn it by heart, the definition of the antithesis, it's quite easy. If you will read it at least 2 or 3 times, it is quite easy to learn in your mind and heart. And whenever you need to clarify what kind of the figures of his speech is that, then recall the definition is like that. In antithesis one word or idea is set against the other to secure an effective contrast by balancing. Let's see the example of the antithesis. It is not very hard, it's very easy to find out what kind of the figures of speech after reading the different kinds of the example which may be given in the question paper, book, or if anybody asks to you that how can you just find out the proper name of the figures of speech. Let's see. United we stand, divided we fall. In the first example what it says, वो कहता है यूनाइटेड वी स्टैंड. अगर हम यूनाइट रहते हैं तो क्या होते हैं? खड़े हो सकते हैं उनके खिलाफ. डिवाइडेड वी फॉल, और अगर कहीं हम डिवाइड हो जाते हैं तो हम उनके सामने क्या होंगे? बिखर जाएंगे. तो द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मे बी डिफर what I am saying in the sense, but the sense what I am just explaining here will be the best example of the antithesis. Okay, the next is to error is human, to forgive divine. One thing very important in that, in the first example you may have seen, yeah, you can see directly here that two thesis has been given. United we stand, and it is divided by a comma, divided we fall. Next, to error is human, to forgive divine. अगर गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, to forgive divine, तो क्षमा करना जो है वो दैवीय गुण है. So within these two examples
I hope and sure both that the concept of the antithesis must be clear in your mind. Let's see with another 3 to 4 examples to clear basically and advance. Okay? God made the country and man made the town. So this is the thing, what? ईश्वर ने क्या बनाया? सहदेश को बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और मानव ने क्या किया? कस्बे बसा दिए. तो हियर देर इज अ contrast of the theory and the ideas, where the motto of the God was so big, so strong, so vast, but the man had just made it very, you can say, उसको छोटा कर दिया. तो थीसिस में क्या है? कंट्रास्ट है. अनारकली, Salim will not let you die. This is one of the best example. Anarkali, Salim will not let you die, and I will not let you leave. So example में क्या कहता है? अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, and I will not let you die. और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा. तो एक ही लाइन में 2 थियरीज का इस्तेमाल है. एक में अनारकली को क्या कहते हैं? एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, और दूसरी तरफ वो कहता है और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा. तो एक ही सेंटेंस में विरोध होता है 2 थियरीज के द्वारा उसमें देके. जैसा कि कहता है ना, वन वर्ड और आइडिया, एक शब्द होता है, अदरवाइज एक आइडिया होता है एक स्टैंडर्ड कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, और उसके में क्या कहता है? सिक्योर करता है एक इफेक्टिव कंट्रास्ट. तो यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव कंट्रास्ट है. यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, अनारकली, सलीम विल नॉट लेट यू डाई एंड आई विल नॉट लेट यू लीव. अनदर एग्जाम्पल, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन. अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना. It is an old and very familiar kind of the phrase, you can say. Many are called, बुलाए तो बहुत जाते हैं, but few are chosen, लेकिन कुछ ही को चुना जाता है. So with these 6 examples, I hope this figure of speech, particularly antithesis, must be clear in your mind. तो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स. अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, अपने पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, अपने सजेशन दीजिए, और हाँ, अब मैं ये कहूँगा सब्सक्राइब भी करिए. थैंक यू वेरी मच.